All right. Okay, so good morning, students. Now, in this grade 9 geography video, we shall start our next topic, that is seasons. Our chapter that is going on is climate, chapter number 4, climate. And in this video, we shall start our new topic, that is seasons. Okay, so please take out your books of geography now. देखो बेटा, in this topic, seasons, before we start this topic now, I want to tell you something important. The weather conditions greatly change from one season to another, but in the coastal areas they do not experience much variation in temperature. ठीक है ना, ये हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था. We have already discussed it that as far as we go away, far away from the sea, as far as the distance from the sea increases, the weather conditions change. ये हमने ना पिछले वीडियोस में भी किया था. In the five mechanisms of monsoon उसमें भी किया था कि as soon as you go far away from the sea, या दूसरे शब्दों में कहें, in other words we can say that as soon as the distance from the sea increases, the weather conditions also greatly change. वेदर कंडीशंस में भी फ़र्क आना शुरू होता है जैसे जैसे आप सी से दूर जाना शुरू कर दो. ठीक है, फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू लिव इन पंजाब इज़ फार अवे फ्रॉम द सीज, सो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ चेंज इन द सीजन थ्रू आउट द ईयर. कभी सर्दी का, समटाइम्स देयर इज समर्स, समटाइम्स देयर इज विंटर्स, समटाइम्स देयर इज स्प्रिंग्स, देयर इज ऑटम. ठीक है ना, तो दैट मीन्स द सीजन्स यूज टू चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन as we go far away from the seas. But in the coastal areas, that means the areas that are very nearer to the sea, that are on the seashore, that do not experience much variation. These coastal areas do not experience much variation in the temperature because in the coastal areas there is not so much change in the season. There is always a moderate type of climate in the coastal areas because जो समुंदर की लहरें हैं वो टेम्परेचर को कभी मतलब एक जैसा बनाए रखती हैं. Sometimes there are cold currents, sometimes there are hot water currents. So these cold water and hot water currents bring cold air and hot air, both. So there is a average temperature always that is maintained in the coastal areas. So if there is average temperature, that means in the coastal areas, the areas near the sea that remain with the average temperature, and there is not so much variation in the temperature. But as far as we go away from the sea, the weather conditions greatly change. Is that clear, Bachcho? Now we have started the topic seasons. Now there are four main seasons. In India, and we shall discuss one by one about them. ठीक है जी, 4 main seasons of India. Okay जी, चलो next. Rubbing this now, ठीक है, then we shall continue our topic, the 4 seasons in India. ठीक है, I'm rubbing this now. Okay. Now, the first season that we are going to study is the winter season. The winter season. Okay, that is the cold weather season. The cold weather season. Now we shall discuss about the winter season. The winter season, that is the cold weather season, begins from the month of November. And continues up to the month of February. Okay. Number 2, the temperature decreases. As we go towards north from south. ठीक है ना, तो कहते देखो बेटा, the winter months begin from the month of November and continues up to the month of February.
नाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम द साउथ. अब देखो साउथ से whenever you are in the southern region of India, the temperature is warm, and as you go upwards towards the north, the temperature begins to fall, the temperature begins to decrease. Now why the temperature begins to decrease? Because as you go far away from the equator, there is a decrease in the temperature. ये आप सबको पता है कि इक्वेटर पर जो है वो सन की रेज सीधी बिल्कुल स्ट्रेट आकर गिरती हैं. दैट्स वाई नियर द इक्वेटर, इन द एरियाज नियर बाय द इक्वेटर हैव वार्म टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन एज फार एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वेदर इट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ, फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द टेम्परेचर बिगिंस टू डिक्रीज. ठीक है ना. तो कहते हैं इन इंडिया इज अबव द इक्वेटर. ठीक है ना, अबव द इक्वेटर, एंड इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ. एंड whenever you are in the Tamil Nadu region, which is very near to the equator, the temperature is near about 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius for the whole year. But as far as you go away from the equator towards northwards, the temperature begins to decrease. That is the reason that Jammu and Kashmir has different temperature throughout the year, and Tamil Nadu has different temperature throughout the year, because the temperature decreases as we go towards northwards from the southwards. साउथ से जब हम नॉर्थ को जाना शुरू करते हैं तो देयर इज ए डिक्रीज इन द टेम्परेचर. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, नंबर 3. नाउ बेटा नंबर 3 देखो. अब ये ना हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में भी, पिछले टॉपिक में भी, कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस विंटर सीजन्स. मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, इन द विंटर सीजन्स द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिटर्निंग बैक, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दे आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. आपको याद होगा, हमने किया था. सो दिस इज द टाइम, दिस विंटर सीजन इज द टाइम, ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स, ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग the winter months, the northeast trade winds are prevailing over the north and नॉर्थ-वेस्ट इंडिया. ओके, इंडिया में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में प्रिवेल कर रही होती है ये विंड्स. ठीक है, दीज आर जनरली ड्राई विंड्स, बट some parts of the winds, comma, but I am rubbing this. I think you have written all this now. Some parts of the winds that is coming from the northeast direction, from the northeast direction, generally creates winter rainfall over the Tamil Nadu region. ठीक है, ये हमने सारा पिछले वीडियो में पढ़ा था. आपको याद होगा, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड कि ना
विंटर मंथ्स में द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर प्रिवेलिंग ओवर इंडिया। ये वही विंड्स हैं जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के रूप में इंडिया में आती हैं और इंडिया में आके बारिश करती हैं। बट आफ्टर दे यूज टू गिव देयर होल वाटर, ठीक है, अपना सारा पानी जब ये दे चुकी होती है, डिस्ट्रीब्यूट देयर होल वाटर, दे रिटर्न बैक इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स। और जब ये विंटर मंथ्स में वापस जा रही होती हैं तो ज़मीन के रास्ते ही जा रही होती हैं, तो इसीलिए आमतौर पे दीज आर ड्राई विंड्स, ये सूखी विंड्स होती हैं, बिकॉज इनमें कोई पानी नहीं होता, क्योंकि अब ये पानी अपना सारा बरसा चुकी होती हैं, ठीक है, और वापस जा रही होती हैं। लेकिन वापस जाते टाइम कुछ पार्ट्स ऑफ द विंड्स, सम पार्ट ऑफ द विंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से आ रही होती हैं, वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है वो हवाएं, तो वापस जाते टाइम बे ऑफ बंगाल में से जाते जाते फिर से इनमें मॉइस्चर भर जाता है, तो जाते जाते ये तमिलनाडु रीजन में रेनफॉल करके जाती हैं। इसीलिए दैट इज़ वाई वी से दैट तमिलनाडु रीजन या कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है ना। तो दिस ऑल दीज कंडीशंस हैपन या प्रिवेल इन द विंटर मंथ्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो बेटा आई होप यू हैव रिटर्न दिस या यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई एम रबिंग दिस नाउ। Number 4, this we have already discussed why the winter seasons come to India। आपको याद होगा हमने कुछ पढ़ा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आमतौर पे कहाँ पे होता है बेटा? ऑन द मेडिटेरेनियन रीजन, डिस्टर्बेंस ऑन द मेडिटेरेनियन रीजन, ऑन द मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर होता है, ठीक है, यूरोप में, और आमतौर पे ये ठंडी हवाएं होती हैं काफ़ी। इसको इंडिया में लेकर आने का काम कौन करता है? इसको इंडिया में इन हवाओं को लेकर इंडिया में कौन होता है? दीज आर ब्रॉट टू इंडिया, दीज आर ब्रॉट टू इंडिया बाय द subtropical westerly jet streams, subtropical westerly jet streams, ठीक है ना। इनको इंडिया आमतौर पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स लेकर आती हैं। दैट्स वाई विंटर सीजन कम्स टू इंडिया, ठीक है ना। ये ठंडी हवाएं होती हैं, ये मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर हो रही होती हैं, लेकिन सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स सर्दियों के मौसम में, आपको याद होगा हमने पढ़ा था सर्दियों के मौसम में दीज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यूज टू फ्लो फ्रॉम द साउथ ऑफ द हिमालयस, ठीक है, फ्रॉम द साउथ ऑफ द हिमालयस, एंड दैट्स वाई दीज विंड्स ब्रिंग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस टू इंडिया, एंड दैट्स वाई विंटर सीजन अराइव्स इन इंडिया, ठीक है। ये था आपका विंटर सीजन या कोल्ड वेदर कंडीशंस। ओके जी, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सीजन इज बेटा द समर सीजन। आई एम रबिंग दिस वन। द समर सीजन, the summer season or the hot weather season, the summer season or the hot weather season। Now beta in this summer season देखो due to the apparent movement of the sun, due to the apparent movement of the sun, the hot weather conditions, hot weather conditions prevail over the North India, the hot weather conditions prevail over the North India, ठीक है।
नाउ नंबर 2, ये आपको बताइए, देखो ना, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, हमें लगे जैसे कहते हैं सूर्य का ऐसा थोड़ा नॉर्थ की तरफ को शिफ्ट होना। सूर्य तो एक जगह रहता है, अपेरेंट मूवमेंट मीन्स हमें लग रहा है, हमें अपीयर हो रहा है कि सर थोड़ा सूर्य जो है थोड़ा सा नॉर्थ वर्ड्स की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। ड्यू टू द अपेरेंट मीन्स मतलब आभास होना, महसूस होना, बट नॉट इन द एक्चुअली, not in the actual terms. तो ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन द हॉट वेदर कंडीशन प्रिवेल ओवर इंडिया। अब इसमें होता क्या है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, westerly jet streams, the subtropical westerly jet streams move from the north of Himalayas, ठीक है। अब ये ड्यूरिंग दिस सीजन्स, during these months, अब इसमें क्या हो रहा है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये हिमालयाज़ के नॉर्थ से निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है वो इंडिया की तरफ से नहीं निकल पाता, वो तिब्बत रीजन की तरफ से निकल जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया में गर्म टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, एंड देयर इज सब ट्रॉपिकल ड्यू टू, और देयर इंडिया में हॉट वेदर कंडीशंस आनी शुरू हो जाती है। सर्दियों में क्या होता है, यही विंड्स जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, इन द विंटर सीजन्स दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द साउथ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। तो दैट्स वाई दे ब्रिंग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस टू इंडिया, तो जिसकी वजह से इंडिया में कोल्ड वेदर हो जाती है। लेकिन इन द समर मंथ्स यही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयस बहती हैं, जिससे कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हिमालयाज के नॉर्थ से निकल जाता है और इंडिया में हॉट वेदर कंडीशंस प्रिवेल होने पड़ती हैं। दैट इज़ द रीजन दैट विंटर सीजन प्रिवेल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई, ठीक है। फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई, वी कैन राइट दिस नंबर 3, फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई। The hot weather conditions prevail over India या over North India from the months of March to May, फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई, ठीक है ना। इन मंथ्स में काफ़ी गर्म टेम्परेचर इंडिया में होता है, बिकॉज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है दे यूज टू फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, और जिसकी वजह से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया में ना आकर तिब्बत रीजन के ऊपर से निकल जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में हॉट वेदर कंडीशंस प्रिवेल होने पड़ती हैं, स्पेशली इन द मंथ्स फ्रॉम मार्च टू मई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 4, अच्छा बेटा, ड्यूरिंग दिस मंथ्स ए स्ट्राइकिंग फीचर, नेक्स्ट फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लू। प्लीज राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लू। अब इन दिनों में फ्रॉम दीज मंथ्स, फ्रॉम द मंथ्स ऑफ मार्च टू मई, द लू also blows. Loo also begins to flow. Yeah, blow. Loo also begins to blow in the North India. हम लोग पढ़ते आगे what is loo. Please write down the question, what is loo. Number 4, ठीक है ना, loo begins to flow in the North India. Now what is loo? What is loo? Loo is the strong, underline please in your textbooks also. Loo is the strong gusty dry winds that flow
during the hot weather seasons in North India. ठीक है ना। लू क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड ड्राई विंड्स हैं, ऐसी विंड्स हैं जो कि आमतौर पे सूखी विंड्स होती हैं, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स बट वेरी हॉट विंड्स। तो दैट्स वाई दीज विंड्स यूज टू ब्लो इन द नॉर्थ इंडिया रीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर सीजन, दैट इज फ्रॉम मार्च टू मे, एंड दैट्स वाई। एंड ऑल्सो वन थिंग इंपॉर्टेंट बेटा अबाउट दिस लू, that the direct exposure to these winds, that is known as loo, is very harmful for the human beings, harmful for the skin also, because these winds are very dry and also very hot and strong. That's why these are harmful for the human body. तो दैट्स वाई हम लोग आमतौर पे गर्मियों में कहते हैं कि वी हैव टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग वेरी हॉट सीजन बिकॉज लू इज़ प्रिवेलिंग इन दोज डेज। तो दैट्स वाई दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन्स फ्रॉम मार्च टू मे इन द नॉर्थ इंडियन रीजन। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 6, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ठीक है ना, ये मार्च टू मई के जो मंथ्स होते हैं व्हेन द लू इज ब्लोइंग ऑल्सो ड्यूरिंग दीज मंथ्स लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स often accompanied by hailstorms also prevail in the region, and in West Bengal region these are known as Kal Baisakhi. ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन, व्हाट इज काल बैसाखी, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म काल बैसाखी। ठीक है, देखो कहते हैं इन्हीं मंथ्स में मार्च टू मई के यही जो मंथ्स हैं व्हेन द लू इज़ ब्लोइंग, व्हेन देयर इज़ वेरी हॉट वेदर सीजन, इन्हीं दिनों में ना नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में और नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर खास करके वायलेंट विंड्स, काफ़ी तेज़ हवाएं, वायलेंट विंड्स, ठीक है, जिनको हम लोग जैसे अंधेरी भी बोल देते हैं, ठीक है, अंधेरी हवाएं जिनको बोल देते हैं। तो वायलेंट विंड्स जो है वो ब्लो हो रही होती है कई बार, और टोरेंशियल डाउनपोर्स। ठीक है, इसमें आमतौर पे क्या होता है, बिजली के साथ हल्की फुल्की बारिश होना, तेज़ बिजली के साथ, और साथ में कई बार ओलावृष्टि, हेल्स मतलब ओले, कई बार ओलावृष्टि वगैरह हो जाना भी होता है शामिल। तो इस सीज़न को आमतौर पे काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि ये जो ओले वगैरह वृष्टि होती है और इस तरह ओले वगैरह पड़ते हैं, ये सारे ना फसलों के लिए अच्छे नहीं होते। तो दैट्स वाई इनको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में। तो क्योंकि क्या होता है, फसलों को ख़राब करने वाले होते हैं, तो दैट्स वाई वेस्ट बंगाल रीजन को काल बैसाखी कहा जाता है। क्योंकि बैसाखी सीज़न में हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग आमतौर पर बैसाखी सीज़न में अपनी जो हमारी वीट की फसल है उसको हम लोग यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लो ओलावृष्टि होने लग पड़े, तेज़ हवाएँ आंधी आने लग पड़े, तेज़ हवाएँ आने लग पड़े, हल्की फुल्की तेज़ आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो जाए, उससे क्या होगा, सारी फसल ख़राब हो सकती है। ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है, बैसाखी का त्यौहार जैसा होता है, जिसमें हम लोग फसलों को काटने के लिए खुशी मना रहे होते हैं, उसको पूरे को एक तरह से ख़राब कर डालती है। तो दैट्स वाई वेस्ट बंगाल रीजन से काल बैसाखी कहा जाता है कि बैसाखी को ख़त्म करने वाली ऐसी विंड्स होती हैं जो कि अपने साथ ओलावृष्टि और ये तेज़ आंधी जैसी हवाएं लेकर आ जाती हैं, जो कि हमारी फसलों को ख़राब करने का काम करती है। ये इन्हीं सीजन्स के दौरान होता है, और इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल रीजन में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आई एम रबिंग दिस डाउन। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट बेटा एक और राइट और अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर मैंगो शार्स। ठीक है, इन्हीं दिनों में in the states of Kerala and Karnataka, ठीक है, the pre-monsoon showers also take place in the states of Karnataka and Kerala. In the states of Karnataka and Kerala, these are known as pre-monsoon showers.
these are known as pre-monsoon showers. And also known as, these are also known as, these pre-monsoon showers are also known as the mango showers. The mango showers, ऐसे these are also known as the mango showers. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर मैंगो शावर्स. ठीक है बेटा, तो कहते हैं इन्हीं दिनों में कर्नाटका एंड केरला स्टेट्स पर, कर्नाटका और केरला स्टेट्स में कुछ प्री मानसून शावर्स हो रही होती हैं, यानी कि मानसून के आने से पहले, मानसून से आने से पहले कुछ हल्की फुल्की बारिश. ठीक है, और बारिश होती है, और वो बारिश जो है वो आमतौर पे कर्नाटक और केरला जैसे स्टेट्स में होती है जहाँ पर मैंगो की क्रॉप जो है उगाई जा रही होती है. और ये जो छोटी हल्की फुल्की बारिश है, प्री मानसून शावर्स, दीज आर वेरी गुड फॉर द क्रॉप ऑफ मैंगो. तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज मैंगो शावर. दीज प्री मानसून शावर्स आर ऑल्सो नोन एज मैंगो शावर्स इन द स्टेट्स ऑफ Karnataka and Kerala, because these are very good for the crop of mango which are grown during these seasons. So that's why these pre-monsoon showers are also known as mango showers in these two states. ठीक है बेटा. So in today's video we had discussed about our two new topics about the two new seasons, that is the cold weather conditions या cold weather season and the hot weather season. ठीक है, हमने winter season और summer season, इन दो seasons के बारे में पढ़ा. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लू, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट काल बैसाखी एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैंगो शावर्स. सो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो. ठीक है बेटा, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा. स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अवर नेक्स्ट सीजन, दैट इज़ योर रेनी सीजन. ठीक है, द मानसून सीजन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज अवर टुडेज वीडियो बेटा. थैंक यू सो मच.